الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة كثيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة والله عنده أجر عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام علیکم. میرا نام محمد ذوالکفل ہے اور میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے مجاہد ٹی وی، اور میری طرف سے تمام ناظرین کو سلام، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور ایمان اور سلامتی کی زندگی نصیب فرمائے، آمین. فضائے بدر پیدا کر کہ تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں فرشتے آج بھی قطار اندر قطار. فضائے بدر پیدا کر کہ تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں فرشتے آج بھی قطار اندر قطار. اور میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے پنجشیر، وادی پنجشیر، صوبہ پنجشیر کے بارے میں جو تازہ معلومات ہے، تازہ خبریں ہیں، ان کے بارے میں کچھ آگاہ کروں گا، اور جہاد کے ساتھ جو اللہ نے نصرت مدد کا فیصلہ وعدہ فرمایا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی جسارت کروں گا، اور پاکستان کے سیاسی حالات کے بارے میں گفتگو کروں گا. تو پرندے مار دے سربو سنوبر مار دے، تو پرندے مار دے سربو سنوبر مار دے، تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کے مار دے، اور تیرا اس ماننے والوں سے پالا پڑ گیا، تیرا اس ماننے والوں سے پالا پڑ گیا، جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے. اور تم بھی موسیٰ کے تعاقب میں چلے آئے تو ہو، دیکھنا تم کو بھی یہ نیلا سمندر مار دے، دیکھنا تم کو نہ بھی یہ نیلا سمندر مار دے. اور تو نے جس کو ڈھونڈنے میں بھیج دی اتنی صفا، ہو نہ ہو وہ تم کو تیرے گھر کے اندر مار دے. اور فیصلے تاریخ کے میدان میں ہوتے نہیں، مارنے والوں نہ کوئی تم کو مر کر مار دے، مارنے والوں نہ تم کو کوئی مر کر مار دے. آج کی جو بات پنجشیر وادی کی ہے، مجاہدین اسلام نے جس طرح پہلے 34 صوبوں پر الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ فتح کیے، اسی طرح
सूबा पंशेर जिसके मुज़ाकरात कई दिनों से जारी थे और मुजाहिदीन इस्लाम ये चाहते थे कि खून खराबा ना हो, कत्ल व गारत ना हो और मुज़ाकरात के साथ मसला आसानी के साथ हल हो जाए, मगर ये सारी कोशिशें नाकाम हुई। चूंकि मोहम्मद ज़िया शाह मसूद अमेरिका के इमा पर और जो बरतानिया में रह रह कर यहाँ आया है, उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी। और वो जो अमरुल्लाह सालेह जो खास CIA का एजेंट है, मोसाद का एजेंट और इंडिया के रा का एजेंट, वो तुला हुआ था इस बात पर कि मैंने लड़ाई करनी है, मैंने मुज़ाकरात नहीं करने। तमाम मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अब मुजाहिदीन इस्लाम आगे बढ़े हैं और उन्होंने कई चौकियों पर कब्जे कर लिए हैं। और मुजाहिदीन इस्लाम ने यह ऐलान किया है कि अगर अहमद ज़िया मसूद लड़ता हुआ पाया जाए तो उसको कत्ल कर दिया जाए और अमरुल्लाह सालेह को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। ये है आज की ताज़ा खबर। ताज़ा इतलात ये आ रही हैं कि कई अहम चौकियों पर मुजाहिदीन इस्लाम ने कब्जा कर लिया है और जैसे बाकी 34 सूबों में 34 सूबों में गवर्नरों का ऐलान कर दिया गया, अब पंशेर वैली के भी गवर्नर का ऐलान वाजे कर दिया गया है और मौलाना आमिर खान मुत्तकी को पंशेर वैली का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया है। और उन्होंने जो पहला एक्शन लिया है और पंशेर की वैली उसकी वो सप्लाई लाइन काट दी गई है और इंशाअल्लाह अभी कुछ घंटों की गेम बाकी है, कुछ चंद घंटे इंतजार करें तो इंशाअल्लाह पूरे अफगानिस्तान में इस्लामी मुजाहिदीन का झंडा लहराएगा और सफेद झंडे ऑलरेडी पंशेर की कई चौकियों पर लहरा दिए गए हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुजाहिदीन के साथ जो नुसरत व मदद का वादा फरमाया था, आज वो 1400 साल के बाद हमें मुशाहिदे में नजर आया। इस सदी के और इस मौजूदा वक्त के जो मुसलमान हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि 1400 साल का वाक़या जो बदर में हुआ था वो आज अल्लाह ने दोबारा मुशाहिदा फरमा दिया, ज़ाहिर फरमा दिया और हमने अपने आंख से देखा। वहां मैदान बदर में 313 मुजाहिदीन इस्लाम सहाबे कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद, बेसरो सामान, कोई जंगी साजो सामान नहीं, कोई नया एमुनिशन नहीं और उनके मुकाबले में जंगी साजो सामान से लेस, घोड़ों से और ऊंटों से लेस। और जब मैदान में आए तो कुफार मक्का ऊंटों को ज़िबा करके उनकी यखनियां पी रहे थे और इधर 313 मुसलमान बिल्कुल उसी तरह ही, ना उनके पास खाने को इतना था, ना लड़ने को ज्यादा सामान था। इसी तरह ही आज मुजाहिदीन इस्लाम ने 20 साल जिस तरह लड़ा है गारों में, गारों के अंदर उन्होंने दौरा कुरान और दौरा तफसीर और दौरा हदीस के दर्स में देते रहे, अपने आप को इस्लामी तालीमात से भी मुज़य्यन करते रहे और अमाल भी करते रहे और जिहाद भी करते रहे। अल्लाह ने वो वादा इनके साथ फरमा दिया। दूसरी बात यह है कि यूट्यूब पर कुछ आज़ाद ये फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान कुफ की सल्तनत का कब्रिस्तान है। बिल्कुल है, लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर कहूँगा कि जहाँ जहाँ मुजाहिदीन का मैदान होगा वहाँ कुफार और सहूनी ताकतों का कब्रिस्तान होगा। जहाँ जहाँ मुजाहिदीन इस्लाम अल्लाह के लिए और उसके दीन के लिए लड़ेंगे, वही मैदान
सहूनी ताकतों के लिए कब्रिस्तान साबित होगा, सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मुजाहिदीन के साथ और खालिसन इस्लाम के लिए लड़ने वालों के साथ मदद नुसरत का वादा फरमाया। और 1400 साल बाद आज जंगे बदर की को हमने मुशाहदे में देखा और जंगे कुदसिया के मनाजिर नजर आए। जी, हज़रत उमर के ज़माने में, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जिस तरह फारस और रोम की सल्तनतों को पछाड़ा गया, वो भी बड़े जदीद असलों के साथ थे। और जितना माले गनीमत इस दफा मुसलमान मुजाहिदीन इस्लाम को हासिल हुआ है इस्लामी तारीख में, इतना बड़ा $83 बिलियन का एमुनिशन, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल प्रूफ टैंक्स और जहाज और जंगी जहाज और न जाने क्या क्या माले गनीमत हाथ आया है। $83 बिलियन। पाकिस्तान के पास भी वो असला नहीं जो अल्लाह ने मुजाहिदीन इस्लाम को माले गनीमत में दिया है। आज से 20 साल पहले जब मुल्ला उमर की हुकूमत थी, तो उस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा था, न कोई एमुनिशन था, न कुछ था। अल्लाह ने इनको दोबारा प्रैक्टिस करवाई और ईमान की दौलत में इजाफा फरमाया। पहाड़ों में गए, आमाल किए इन्होंने, दर्स कुरान पहाड़ों के अंदर होता रहा, खत्म बुखारी और खत्म हदीस और दार हदीस गारों में होता रहा और अमल होते रहे अल्लाह ने, और साथ साथ जिहाद भी होता रहा। अल्लाह ने इनको इतना बड़ा माले गनीमत अता फरमाया। ठीक 20 साल पहले जब अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा था मौलाना उमर से इस्लामाबाद में, मौलाना उमर के वफद से, कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो वरना हम अफगानिस्तान पे हमला कर देंगे और आपकी खिलाफत और इस्लामी निज़ाम इस्लामिक एमिरेट को हम तबाह कर देंगे। तो मौलाना उमर ने एक बात फरमाई कि अगर उसामा बिन लादेन का हाथ है 9/11 में तो हमें सबूत लाकर दे दो, हम उसामा बिन लादेन को आपके हवाले कर देंगे। तो ये गए, सबूत लेकर आए, इतने कमजोर सबूत कि जिसके बिना पर कोई कह ही नहीं सकता कि उसामा बिन लादेन का हाथ था उसमें 9/11 में। तो मौलाना उमर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा अमेरिकियों से कि तुम ये जो सबूत लेकर आए हो, इन सबूतों पर तुम्हारी अदालतें यानी अमेरिका की अदालतें ये साबित कर सकती हैं कि उसामा बिन लादेन मुजरिम है। तो उन्होंने कहा नहीं, साबित नहीं कर सकते अदालतों में, कमजोर सबूत है हमारे पास। तो मौलाना उमर ने कहा भाई फिर मैं एक मुसलमान को जो गुनाहगार भी नहीं, जिसने कुछ किया भी नहीं, जिसका 9/11 में हाथ भी नहीं, मैं उसको आपके हवाले कैसे कर दूं? तो फिर वो चले गए और जॉर्ज बुश ने ऐलान कर दिया कि मैं अफगानिस्तान पे हमला करने जा रहा हूं। और इस तरह अमेरिका ने, जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पर हमला किया और एक ऐलान किया। हमले के फौरन बाद खिताब फरमाया अमरीकियों को, पूरी दुनिया को, कि मैं ऐलान करता हूं कि आज से सलीबी जंग का शुरू हो चुकी है। मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग शुरू हो गई। मतलब वो कह रहा है कि ईसाईयत इस्लाम के खिलाफ जंग शुरू हो गई, ये वो कह रहा है, अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि सलीबी जंग का आगाज कर दिया मैंने, यानी कि ईसाईयत और कुफ्र, नसरानियत, यहूद और नसारा, ये अब इन्होंने जंग शुरू कर दी है इस्लाम के खिलाफ। ये ऐलान किया था बुश ने। फिर तो अब जो फतह नसीब हुई है मुसलमानों को, वो तालिबान या अफगानिस्तान की फतह नहीं, वो भी पूरे इस्लाम की फतह है। चूंकि ऐलान जंग जो उन्होंने किया था बुश ने,
وہ کہا تھا کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. کفر یعنی کہ ہماری جنگ اسلام کے ساتھ ہے. تو آج جو فتح ہوئی ہے وہ بھی پورے مسلمانوں کی فتح ہے, پوری اسلام کی فتح ہے. تو یہ فتح مسلمانوں کو مبارک ہو. جہاں جہاں میدان لگے گا اسلام کے خلاف اور مسلمان جہاد کے لیے میدان میں آئیں گے, وہی میدان کفر کی سلطنتوں کا قبرستان ثابت ہوگا. صرف افغانستان ہی نہیں, ہر وہ میدان جہاں پر اسلام کے خلاف جنگ لڑی جائے گی اور مجاہدین اسلام جان کے نذرانے دیں گے اللہ کے راستے میں, ہر وہ میدان یہود و نصارہ کا قبرستان ہوگا. اب میں آپ کو پاکستان کی سیاست کے بارے میں چند چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو جمہوریت بھیجی گئی ہے اور جو ہمیں ہمارے ملکوں میں ایکسپورٹ کی گئی ہے جمہوریت ویسٹ سے, وہ ایک کرپٹ نظام ہے جس کے ذریعے یہ لٹیرے, لٹو پٹو والے نواز شریف اور زرداری کرپشن پہ بھاری یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ لوٹ کے ملک کو لے جاتے ہیں. 70 سال سے زیادہ ہو گئے, ہماری حالت نہیں بدلی, غریب پس گیا اور ملک وہیں کا وہیں غریب رہا. جہاں پر ہماری پاکستانی فوج کا حصہ تھا, انہوں نے بڑی کامیابی سے افغانستان کے جہاد میں در پس پردہ حصہ لیا اور وہ جہاد افغانستان کو کامیاب کرایا. مبارک ہو ہماری پاکستانی فوج, زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ معاشی دہشت گرد کس طرح ہمارے ملک میں پلتے رہے اور ان کی کوئی خبر نہیں لی, یہاں تک کہ 30 سال یہ ملک کو لوٹتے رہے اور کسی نے اس کو پوچھا نہیں. ایک طالبان جو ایک دھماکہ کرتا ہے, یہ بندوق اٹھا کے دہشت گردی کرتا ہے, غلط کرتا ہے, وہ انوسنٹ لوگوں کو مارتا ہے, آپ نے ان کو پیچھے تو لگ گئے, ان کو تو آپ نے مار دیا. الحمدللہ دہشت گردوں کو پاکستانی افواج نے ختم کیا, مگر یہ معاشی دہشت گرد پلتے رہے, ان کی کسی نے خبر نہ لی اور ملک یہاں تک پہنچ گیا, قرضوں میں ڈوب گیا. آج مہنگائی انہی کی وجہ سے ہے, لیکن بلیم سارا موجودہ حکومت پر ہے. عمران خان کی حکومت, عمران خان بذات خود بہت ایماندار اور دیانتدار آدمی ہے, مگر وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پچھلی حکومتوں کے بھی وزیر تھے اور اس حکومت کے بھی وزیر ہیں. ایک فکرہ جو میں کہنے جا رہا ہوں, جس کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا. جسے کہ بہت سارے یار ہوں وہ کسی کا یار نہیں ہوتا. کہ وہ وزیر پیپلز پارٹی ہے تو ان کے ساتھ, نون لیگ ہے تو ان کے ساتھ, کوئی اور پارٹی ہے تو ان کے ساتھ. وہ جب یہاں بیٹھے ہوں گے تو وہ کس طرح عمران خان آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی حکومت میں ہی کچھ وزیر تھے جو نواز شریف لٹیرے کے بارے میں, ڈاکو کے بارے میں یہ کہتے تھے ایسے چک چک کرتا ہے, چک چک کرتا ہے, اس کو بھیج دو. اب وہ کس زبان سے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لاؤں گا؟ آپ کو خود پتہ کرنا ہوگا. آپ کے علم میں ہے یہ بات عمران خان صاحب کہ کون سا وزیر بار بار ٹی وی میں آ کے کہہ رہا تھا میں تو کہتا ہوں یہ چک چک کرتا ہے, یہ چک چک کرتا ہے, اس کو بھیج دو. میرے خیال میں آپ کو غلط مشورے دیے گئے. اس لیے میں کہتا ہوں جو سب کا یار ہے وہ کسی کا یار نہیں, جو سب کا دوست ہے وہ کسی کا دوست نہیں. آپ ایک آنےسٹ اور دیانتدار اور محنتی آدمی ہیں, لیکن آپ کے ارد گرد سارا آبا کا آبا پچھلی حکومتوں کا بیٹھا ہوا ہے.
और ये जो लुट्टो पुट्टो वाले हैं, नवाज शरीफ लुटेरा हो या जरदारी, सारे करप्शन पे भारी। और वो नवाज शरीफ कहता है झूठ को इज्जत दो। वो थोड़ी कह रहे वोट को इज्जत दो, वो कहते हैं जो हम इतने झूठ बोल रहे हैं, सारा खानदान मिलकर इतने झूठ बोल रहे हैं, इनको इस मेरे झूठ को इज्जत दो, झूठ को इज्जत दे, वो मांग रहा है। और ये करप्शन पे भारी, लूट लाट के सारे बजट कराची के खा गया, कराची को कचरा कुंडी बना के रख दिया। और आप कुछ कर नहीं रहे। 18वीं तरमीम को उठा के फेंक दो, किसी कचरे के कुंडी में फेंक दो, एक बिल पास करो, कराची के हालात ठीक हो जाएंगे, सिंध के हालात ठीक हो जाएंगे। और जो आपने वादा किया था, बहुत सारे सूबे बनाने हैं, कराची को सूबा बनाओ, सराइकी सूबा बनाओ, और जो सूबे निकलते हैं उनको बनाओ। आपको क्या मुश्किल है अब इस पे अमल करने में, जिसके आपने वादे किए हैं? जाहिर है आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो सबके यार हैं। और एक और बात मैं पाकिस्तान के बारे में, वोटर, ये जो आपने वोटर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई है, वोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो ताकि धांधली ना हो। भाई तब्दीली तो इस मशीन से नहीं आएगी, चूंकि वोट देने वाले 70% देहातों, पहाड़ों और सहराओं में रहने वाले लोग, उनको वोट के तकद्दुस का पता नहीं, कि वोट की अहमियत का पता नहीं। और उनकी अक्सरियत है पाकिस्तान में। वो जो अपने चौधरी कहते हैं वहां जाके अंगूठा लगा देंगे मशीन में, जो उनके सरदार कहते हैं वो मशीन में जाके अंगूठा लगा देंगे, जो उनके नंबरदार कहते हैं वो जाके मशीन में अंगूठा लगा देंगे। उनके जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, जिनके वो मुजेरे हैं, जिनके जेर साया काम करते हैं, वो जाके अंगूठा लगा देंगे उनके कहने पर। तब्दीली किस तरह आएगी? मेरा एक मशवरा है पाकिस्तान के तमाम कुव्वत रखने वाले इदारों को, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को, जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उनके करीब बहुत रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ वो ऑनेस्ट और मेहनती आदमी है। चूँकि जिमामा खान जहाँ रहती थी वो हमारे हमसाए में थी, रिचमंड में, हैम कॉमन में, और मेरे सामने वो बड़ी हुई। और मैं इमरान खान की शादी पर भी था हैम कॉमन रिचमंड में, और जहाँ पर उसकी रजिस्ट्रेशन मैरिज हुई थी, रजिस्टर्ड माउंट एरर रोड रिचमंड में, मैं वहाँ भी उनके साथ था। तो मैं इसको जानता हूँ, इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, बहुत दयानतदार है। तो मैं ये मशवरा दे रहा हूँ तमाम कुव्वतों को, चाहे वो जुडिशरी कुव्वत है, चाहे अस्करी कुव्वत है, चाहे आपकी हुकूमत है, भाई या तो इन 70% देहात के लोगों को, शहराओं के लोगों को और पहाड़ों के लोगों को, जिनको वोट के तकद्दुस का पता नहीं, अहमियत का पता नहीं, या तो उनको जाके पहले समझाओ कि वोट एक अमानत है और इससे आपके मुल्क में तब्दीलियां आती हैं, हालात बदलते हैं। और अगर उनको नहीं समझा सकते तो फिर उनका वोट खत्म कर दो। उनके वोटों से तब्दीली नहीं आ सकती। ये जो नवाज शरीफ इतना हंसता है और मुस्कुराता है, ये उन्हीं बेचारे अनपढ़ लोग जो देहातों जंगलों में रहते हैं, उन्हीं के वोटों पे तो इतराते हैं ये लोग। शहरों से तो वोट नहीं ले सकते। शहरों में तो लोगों को पता है वोट की अहमियत का, वोट के तकद्दुस का, और वोट से क्या होता है। शहरों में लोग पढ़े लिखे हैं, उनको वोट की अहमियत का पता है। ये जो इतरा रहा है नवाज शरीफ डाकू और जरदारी डाकू, ये इन लोगों के वोटों पे इतरा रहे हैं कि आज भी अगर आ जाएंगे तो ये लोग जो सरदारों के अंडर हैं, चौधरियों के अंडर हैं, नंबरदारों के अंदर हैं, अंदर उनके मातहत हैं, मुजारे हैं उनके वो उनको ये खरीद लेते हैं और वो वोट इनके नाम से डलवाते हैं। ये दुकानदारियां चल रही हैं वोटों के ऊपर, तो तब्दीली कैसे आ सकती है? मेरा ये मशवरा है, या तो उनको जाके तालीम दो वोट की अहमियत की, या फिर जब तक तालीम नहीं दे सकते तो उन लोगों का वोट खत्म कर दो, वोट की उनको इजाजत ना हो।
वोट वही दे सकता है जिसको वोट का पता हो, वोट के तकद्दुस का पता हो, वोट से क्या होता है उनका पता हो। ऐसे ही मेरे चौधरी ने, मेरे ठाकुर ने, मेरे सरदार ने कहा है यहां जाके अंगूठा लगाओ, वहां मशीन पे अंगूठा लगा देंगे। तो मैं आप तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे मुजाहिद टीवी को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें। मैंने इसका नाम मुजाहिद टीवी इसलिए रखा है कि जब रशिया ने इन्वेट किया था, अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था, तो मैंने उस वक्त पाकिस्तान आर्मी से मुजाहिद फोर्स की ट्रेनिंग हासिल की थी और मैं नॉर्थ ऑफ कंधार में मैंने जिहाद किया था, एंटी एयरक्राफ्ट चलाई थी मैंने वहां पर और बहुत सी चीजें। तो मैंने जिहाद किया था अफगानिस्तान में रशिया के वक्त पर। इसलिए आज मुझे खुशी है कि आज वो हमारा किया हुआ जिहाद अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। मैंने इसलिए अपने टीवी का नाम मुजाहिद टीवी रखा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमें, ताकि हम नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हों। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम।